دنیا کے بیشتر لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس صرف 5 حواس ہیں۔ وہ حواس کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا اور ہاتھوں سے چھونا ہے۔ ان 5 حواسوں کے بارے میں پہلی بار یونان کے مشہور فلسفی ارسطو نے اپنی کتاب دی انیما، جس کا اردو نام روح کے متعلق، میں بتایا ہے۔ ارسطو نے یہ کتاب 4 صدی قبل مسیح میں لکھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہم انہی 5 حواسوں کو انسان کے کل حواس سمجھتے ہیں، جبکہ مغرب میں سائنس کی ترقی اور ترویج نے یہ بتایا ہے کہ انسانوں کے پاس ان 5 حواسوں کے ساتھ اور بھی حواس ہیں۔ ہمارے ملک میں تعلیمی نصاب بنانے والے ماہرین اس 21ویں صدی میں بھی ان دوسرے حواسوں سے بالکل بے خبر ہیں، اور ہم آج بھی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں صرف انہی 5 حواسوں کے بارے میں پڑھاتے ہیں جو ارسطو نے اپنی کتاب میں 2400 سال پہلے لکھے ہیں۔ ان 5 حواسوں کو 3 مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم کا تعلق روشنی سے ہے، جو نظر سے واسطہ رکھتی ہے۔ دوسری قسم کیمیائی درجے میں آتی ہے، اس میں چکھنے اور سونگھنے کے حواس آتے ہیں۔ تیسری قسم کو میکینیکل کہا جاتا ہے، اس میں چھونا اور سننا شامل ہیں۔ آئیے ہم مختصراً کچھ ذکر ان دوسرے حواسوں کا کریں جن کو ہمارے تعلیمی ماہرین نے اپنی کم علمیت کی وجہ سے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ان حواس کی تعداد 25 سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں پہلی حس کا نام پروپریوریسپشن ہے۔ یہ حس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کہاں واقع ہیں۔ ہم دوڑنے اور چلنے کے دوران اپنے پاؤں کی طرف نہیں دیکھتے اور پھر بھی بنا گرے ہوئے چلتے رہتے ہیں۔ یہ حس پروپریوریسپٹرز کے ذریعے کام کرتی ہے، جو ہمارے جوڑوں یعنی جوائنٹس اور پٹھوں یعنی مسلز میں ہوتے ہیں۔ یہ پروپریوریسپٹرز بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کہاں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس نشے میں دھت لوگوں کو پکڑنے کے بعد ان کو کہتی ہے کہ اپنی انگلی ناک پر رکھ کر دکھائیں۔ نشے کی حالت میں یہ پروپریوریسپٹرز ٹھیک طرح کام نہیں کرتے، اور اسی طرح وہ شرابی اپنی انگلی کو ناک پر نہیں رکھ سکتا اور پکڑا جاتا ہے۔ دوسری حس کا نام تھرموسیپشن ہے۔ یہ حس ہمیں گرمی اور ٹھنڈک کے بارے میں بتاتی ہے۔ ٹھنڈک والی حس 68 سے 86 ڈگری فارنہائٹ کے اندر کام کرتی ہے، اور گرمی والی حس کی رینج 86 سے 104 فارنہائٹ کے بیچ میں ہوتی ہے۔ 68 ڈگری فارنہائٹ سے نیچے اور 104 سے اوپر انسان گرمی یا ٹھنڈک محسوس نہیں کرتا، اور وہ صرف درد محسوس کرتا ہے۔ تیسری حس کا نام نوسیوسیپشن ہے۔ یہ حس درد کو محسوس کرتی ہے۔ درد 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کا نام کوٹینیس پین یعنی جلدی درد، جو ہماری چمڑی یا سکن میں ہوتا ہے۔ دوسرا درد ہماری ہڈیوں اور پٹھوں میں ہوتا ہے، اس کو سومیٹک پین کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم کے درد کو وسرل پین کہا جاتا ہے، جو انسان کے اندرونی اعضاء میں پیدا ہونے والے درد، مثلاً پیٹ کے درد وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ چوتھی حس کا نام کائنستھیشیا ہے۔ یہ حس ہمارے جسم کی حرکت یعنی چلنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، سفر وغیرہ کرنے کے دوران دماغ کو انسانی جسم کے بارے میں بتاتی ہے۔ پانچویں حس کا نام ایکوی لیبروسیپشن یا توازن قائم کرنے کی حس ہے۔ اس حس کا نظام اندرونی کان کے اندر موجود ویسٹیبولر سسٹم میں ہے۔ یہ حس ہمارے جسم کو زمین یا رسی کے اوپر چلنے یا چھلانگ لگانے وغیرہ کے دوران توازن قائم کرنے میں مدد دیتی ہے اور ہمیں گرنے سے بچاتی ہے۔ اس حس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں دماغی چکر آتے ہیں۔ چھٹی حس کا نام کرونوسیپشن ہے۔ اس کا تعلق وقت یا ٹائم سے ہے۔ اس حس کا کام ہمارے دماغ کو ماضی، حال اور مستقبل سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ حس ہمیں بتاتی ہے کہ کتنے گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ گزر چکے ہیں، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم بچپن، جوانی یا بڑھاپے کی حالت میں ہیں۔ ساتویں حس بھوک کے بارے میں بتاتی ہے کہ جسم کو خوراک کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے جسم کو خوراک کی ضرورت بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے ہی یہ حس دماغ کو زیادہ الرٹ کرتی جاتی ہے، جب تک جسم کو ضرورت کے مطابق غذا نہیں ملتی۔ آٹھویں حس پیاس سے متعلق ہے۔ بھوک کی حس کی طرح یہ حس دماغ کو لکوڈ کی کمی کا بتاتی ہے۔ اس کی شدت وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ جائے انسان پانی، جوس اور کوئی اور لکوڈ پی کر اپنے جسم کے اندر مائع کی کمی کو دور نہیں کرتا۔ نویں حس کا تعلق کھانے یا پینے کے بعد
जिस्म के मुतमईन होने से है। इसको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कहा जाता है। इस हिस्स के ज़रिए ये पता चलता है कि जिस्म को ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा या माया मिल चुका है और अब जिस्म को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। इस हालत में इंसान मज़ीद खाना पीना बंद कर देता है। प्राडर-विली सिंड्रोम नाम की एक बीमारी में ये हिस्स काम नहीं करती और नतीजतन मरीज़ को ये पता नहीं चलता कि इसको कितनी खुराक खानी चाहिए। इस बीमारी में मरीज़ मुसलसल खुराक खाता रहता है और इसे कभी भी अपने पेट भरने का एहसास नहीं होता कि वो ज़रूरत के मुताबिक खाना खा चुका है और अब इस खुराक लेना बंद कर देना चाहिए। इस बीमारी में मुब्तला मरीज़ों को हर खाने के वक्त बताना पड़ता है कि वो किस वक्त ग़िज़ा लेना बंद करें। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसान के अंदर मौजूद DNA का 15 नंबर क्रोमोसोम काम नहीं करता। इस बीमारी का मेडिकल साइंस में कोई इलाज मौजूद नहीं है। 10वीं हिस्स का ताल्लुक तनाव या टेंशन से है। जब इंसान अपनी कुव्वत से ज़्यादा वज़न उठाता है तो इसको बाजुओं में दर्द और जब ज़्यादा दौड़ता है तो इसको अपनी टांगों में दर्द महसूस होता है। जब काम का दबाव ज़्यादा होता है तो दिमाग की रगें तनाव या टेंशन महसूस करती हैं और इससे इंसान अपने सर में दर्द महसूस करता है। ये दर्द इस हिस्स की वजह से महसूस होता है। 11वीं हिस्स का नाम दबाव हिस्स यानी सेंस ऑफ प्रेशर है। जब इंसान किसी झूले पर चढ़कर ऊपर या पानी के अंदर जाता है तो अपने आप को हल्का महसूस करता है और जब वो किसी पहाड़ी वगैरह के ऊपर चढ़ता है तो इसको अपना जिस्म भारी महसूस होता है। ये इसी हिस्स का काम है। 12वीं हिस्स का ताल्लुक जांचने से है। इसको जांचने की हिस्स या सेंस ऑफ नोइंग कहा जाता है। ये हिस्स हमें बताती है कि कौन खूबसूरत है, कौन बदसूरत है, कौन से कपड़े, जेवर या रंग लोगों के ऊपर जचते हैं या ख़राब लगते हैं। 13वीं हिस्स का नाम मैग्नेटोसेप्शन है। ये हमको चलने, दौड़ने और सफ़र करने के वक्त रुख के बारे में बताती है। ये हिस्स ज़मीन के मकनातीसी मैदान या मैग्नेटिक फील्ड से वास्ता रखती है। परिंदे इस हिस्स के ज़रिए हज़ारों मील उड़कर दूसरे मुल्कों में मौजूद झीलों और दरियाओं तक पहुँचते हैं। 14वीं हिस्स का नाम सिनेस्थीजिया है। ये हिस्स दूसरे कुछ हिस्सों को आपस में गुटमुट करती है। ये हिस्स ज़्यादातर इस वक्त काम करती है जब लोग नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। इंसान को इस कैफियत में मौसीकी के दौरान मुख्तलिफ तस्वीरें नज़र आती हैं या आदाद और चीज़ें रंगीन नज़र आती हैं। 15वीं हिस्स का नाम सेंस ऑफ सर्केडियन है। ये हिस्स हमें दिन, रात, शाम, नींद, थकावट और जागने जैसे हालात वगैरह के बारे में बताती है। 16वीं हिस्स का ताल्लुक सेक्स से है। जिस तरह गर्म चीज़ को छूने से दिमाग की तवज्जो इसी गर्म चीज़ की तरफ मरकूज़ हो जाती है, इसी तरह ये हिस्स मुखालिफ सेंस को देखकर इंसानी दिमाग की जिबली कैफियत को बेदार करती है। ये हिस्स सिर्फ मुवाफिक हालात में काम करती है। किसी इंसान को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दें या मारने के लिए पिस्टल इसकी कनपट्टी पर रख दें या इंतहाई भूख या प्यास के आलम में रखें तो ये हिस्स इस वक्त काम नहीं करती। 17वीं हिस्स का नाम सेंस ऑफ ओरिएंटेशन है। ये हिस्स हमें बताती है कि हम सीधे खड़े हैं या उल्टे, दायरे में घूम रहे हैं या सीधा सफ़र कर रहे हैं, ज़मीन पे हैं या हवा में लटके हुए हैं वगैरह। 18वीं हिस्स का नाम मुस्तकबिल की आगाही यानी प्रीकॉग्निशन है। इंसान इस हिस्स के ज़रिए मुस्तकबिल को देखने की सलाहियत रखता है। नॉस्ट्रडेमस, जीन डिक्सन की पेशनगोइयों के पीछे यही हिस्स थी जो इन लोगों में भरपूर अंदाज में काम कर रही थी। 19वीं हिस्स का नाम आने वाली नामालूम सूरत हाल को भांपना है। इसको इंट्यूशन या छठी हिस्स भी कहा जाता है। ये हिस्स आने वाले अच्छे या बुरे हालात को महसूस करती है। 20वीं हिस्स का नाम क्लेवोरेंस है। इस हिस्स की मौजूदगी में इंसान इन चीज़ों, वाक़यात वगैरह की आगाही हासिल करता है जो आम इंसानी दिमाग के ज़रिए मुमकिन नहीं होती। ब्रिटेन गॉट टैलेंट प्रोग्राम जो YouTube पर भी मौजूद है, इस प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े टॉमी टेन और एमिलिया वैन टास ने रोशन ज़मीरी के मुज़ाहरे किए जो देखने के लायक हैं। 21वीं हिस्स को पहचान की हिस्स या सेंस ऑफ रिकग्निशन कहा जाता है। ये हिस्स इंसानों को अपने ख़ानदान, दोस्तों, ऑफिस के साथी, दूसरे लोगों और चीज़ों के पहचान के बारे में बताती है। जिस वक्त यह हिस्स कमज़ोर हो जाती है तो इंसान इन सब को पहचानने में मुश्किलात महसूस करता है। मेडिकल साइंस में भूलने वाली बीमारी एमनीजिया में यही होता है। 22वीं हिस्स का नाम मुतासिर करने की हिस्स या सेंस ऑफ
इन्फ्लुएंस है। बड़े बड़े सियासतदान, अदाकार और अदीब, इनमें यह हिस्स बहुत ताकतवर होती है और वो दूसरे लोगों पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि आम लोग इनकी जायज़ और नामुनासिब बातों की पैरवी करना अपना फ़र्ज समझते हैं। इस हिस्स को करिश्मा भी कहा जाता है। 23वीं हिस्स का नाम ठीक वक्त पर काम करने की सलाहियत वाली हिस्स यानी सेंस ऑफ टाइमिंग है। बड़े बड़े खिलाड़ी, जवारी, सिट्टा खेलने वाले और कारोबारी लोगों में ये हिस्स नहायत भरपूर होती है। किस वक्त कारोबार करना है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, क्रिकेट में किस वक्त छक्का लगाना है, किस वक्त बॉल को दाएं या बाएं हिट करना है, ये सब इसी हिस्स का काम है। ये हिस्स दूसरे खेलों में भी नहायत बुनियादी किरदार अदा करती है। 24वीं हिस्स का नाम दूसरों के ख्यालात पढ़ना यानी टेलीपैथी है। ये हिस्स इंसानों को दूसरों के ख्यालात पढ़ने की सलाहियत मुहैया करती है। साइंसदानों ने इस पर काफ़ी तहकीक की है और वो बहुत से इंसानों में इस हिस्स या सलाहियत की मौजूदगी के कायल हैं। 25वीं हिस्स का नाम क्लियर ऑडियंस है। इस हिस्स के ज़रिए कुछ लोग सैकड़ों और हज़ारों मील दूर की बातों को सुन सकते हैं। इन ऊपर बताए गए हवास के सिवा कुछ और भी हवास हैं जिनसे इंसान काम लेता है। इसमें मज़ा की हिस्स यानी सेंस ऑफ ह्यूमर, ब्लड प्रेशर के महसूस करने की हिस्स, बुखार के सूरत में जिस्म के अंदरूनी हरारत को महसूस करने की हिस्स, जज्बात की हिस्स जिसके ज़रिए इंसान गम, खुशी, उदासी, मायूसी वगैरह महसूस करता है, सिर्फ कुछ नाम हैं। हकीकतन देखा जाए तो इंसान का पूरा काम हवासों के ज़रिए होता है और अगर कुछ हवास काम करना छोड़ दें तो वो इस दुनिया में ख़ुद को बहुत मुश्किल हालात में पाता है। मसलन नज़र की हिस्स रंगों को भी पहचानती है। अगर बसरी हिस्स रंगों को देख नहीं पाएगी तो कोई भी इंसान गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि ट्रैफिक के सिग्नल पे वो किसी भी रंग को देख नहीं पाएगा और इसको ये पता नहीं लगेगा कि सिग्नल खुला हुआ है या बंद है। नतीजतन इसकी गाड़ी जाकर दूसरों की गाड़ियों से टकराएगी और इस तरह वो शख्स जानी और माली नुकसान उठा सकता है।